Sayyid Rashid from Ahlaved High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel named as Ahlaved High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Now we will going to learn one more topic related to our chapter electric current, and the topic name, as you can see on board, is what is potential difference, PD, electromotive force, EMF, and difference between them. So this topic usually we will going to learn today. So hope you have saw my previous two session related to our electric current. Now we are starting our third session or third part of electric current. Now for this, all the student and viewers, I'd like to say few points we need to remember related to the potential difference and electromotive force. Need not to कंफ्यूज एंड वरीड अबाउट दिस टॉपिक. थोड़ा सा ये टॉपिक में कन्फ्यूज़न और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. थोड़े से डिफरेंस पढ़ लेंगे 4 या 5, वो काफ़ी रहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को समझने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए. और कमिंग टू दी आवर लाइक टेक्स्ट बुक्स या फिर वर्ड बुक्स की अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस को लेके बहुत सारी थ्योरी देता है उन्हें, 1 पेज 2 पेज 3 पेज की. नीड नॉट टू वरीड, वी हैव फ्यू पॉइंट्स विद अस, वी नीड टू रिमेंबर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट ओनली. दिस इज वेरी वेरी more enough for us to understand this topic. Now first I will going to read the difference between like electromotive force and potential difference. In this reading you will get definition and the difference also. After that I will explain in our own Hindi language. Now listen carefully, and while reading I am placing one image also on your screen, and the image will be shown like this. Okay, EMF. In that image you will get like this, EMF and potential difference. Okay, this type of thing you are getting on your screen. Okay, now the time to see. I am reading and placing image on your screen. Listen carefully. EMF, potential difference. EMF is the maximum potential difference between the two electrodes of the cell when no current is drawn from the cell, that is when the circuit is open. It is independent of the resistance of the circuit. The term EMF is used only for the source of EMF. It is greater than the potential difference between any two points in a circuit. Potential difference. Potential difference, PD, is the difference of the potential between any 2 points in a closed circuit. It is proportional to the resistance between the given points. It is measured between any 2 points of the circuit. However, PD is greater than EMF when the cell is being charged. Now listen carefully. अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेंगे इसका. अगर इसकी डिफरेंस की बात आई तो सेम मेरे को एक छोटा सा सर्किट या फिर शेल उतारना पड़ेगा. जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा शेल है या फिर ये बैटरी है. ठीक है, ये हमारी एक कंप्लीट सर्किट हो गई. ठीक है, एक ओपन सर्किट रहती. अगर स्विच उसका ऑफ है तो वो ओपन सर्किट हो गई, स्विच अगर ऑन है तो वो क्लोज सर्किट हो गई. स्विच को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं कभी भी. तो अब मेरे पास सिर्फ स्विच है, बैटरी है, बीच में मैंने कुछ भी नहीं लगाया, चाहे बल्ब वगैरह कुछ भी. हाँ, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, बीच में एक रेसिस्टेंस को लगा देता हूँ. ठीक है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा देता हूँ मैं. रेसिस्टेंस किसको बोलते हैं हम थोड़ा सा आगे समझेंगे. रेसिस्टेंस का डेफिनेशन, जो ब्लू कलर का मैं आपको मार्किंग दिख रहा वो रेसिस्टेंस रहता. तो सबसे पहले EMF को समझेंगे. EMF क्या है? एक मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है. ठीक है, बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स के बीच में बोलते हो. ये एक हमारे पास इलेक्ट्रोड है, एक यानी कि जो बड़ा वाला रहता है यूजुअली वो नेगेटिव रहेगा और छोटा वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहता. तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वही है. मगर कंडीशन क्या है कि जब सर्किट ऑफ हो, यानी कि सर्किट ओपन हो, स्विच ऑफ रहना चाहिए, तो सर्किट को हम ओपन सर्किट कहते हैं. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रेसिस्टेंस. यहाँ पे जो रेसिस्टेंस दिख रहा इससे उन्हें इंडिपेंडेंट रहता, उससे रेसिस्टेंस से उसका डिपेंडेंसी कुछ भी नहीं रहती. ठीक है, द टर्म EMF इज यूज ओनली फॉर द सोर्स. जो EMF जो रहता हम सोर्स के लिए ही इस्तेमाल करते हैं. जैसा कि ये बैटरी है, बैटरी का EMF रहेगा आपको, यानी कि वायरम का कुछ भी EMF वगैरह नहीं रहेगा, बैटरी का EMF रहता है. इट इज़ ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट.
ये क्या होता है, अगर दो पॉइंटों की अगर बीच की बात करेंगे तो उन्हें पोटेंशियल डिफरेंस से बढ़ के रहता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक पोटेंशियल है बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए क्लोज सर्क्यूट। अब ये क्लोज सर्क्यूट है, उसके बीच में दो पॉइंट्स है, जो दो पॉइंट्सों का जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है, वो है आपको पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे सर्क्यूट को क्लोज होना चाहिए, वहाँ पे सर्किट ओपन थी, यहाँ पे क्लोज है, पहला डिफरेंस। दूसरा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट। अब यहाँ पे ये जो रेसिस्टेंस है ना, ये रेसिस्टेंस पे हो सकता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस यूजुअली हम किस में मेज़र करते हैं, वोल्ट्स में मेज़र करते हैं, 1 वोल्ट 2 वोल्ट बोल के। तो यहाँ पे अगर 6 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस रेसिस्टेंस से इधर, तो यहाँ पे 6 वोल्ट रहना ज़रूरी नहीं है, वो कम भी हो सकता है, यानी कि 5 वोल्ट भी हो सकता, या फिर वो 7 वोल्ट भी हो सकता है, यानी कि थोड़ा सा उसमें फ़र्क आएगा। इट इज़ मेजर बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्क्यूट। इन्हें क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पॉइंट्स है उन दोनों के बीच का मेज़र है। जैसा कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का बीच का मेज़र रहेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से लेके यहाँ तक भी माप सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक भी मेज़र कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी मेज़र कर सकते हैं, दो पॉइंटों का है। लेकिन ईएमएफ क्या रहता, सिर्फ सोर्स का रहता, ये नेगेटिव से पॉजिटिव का जो है वो ईएमएफ रहता। हाउएवर पीडी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ग्रेटर रहता ईएमएफ से व्हेन द सेल इज बीइंग चार्ज। अगरचे कि ये जो बैटरी है अगर फुल चार्ज है तो क्या होता, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से भी बढ़कर रहता है। तो ये 4 पॉइंट हो गए ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को लेके। वन मोर थिंग, पोटेंशियल डिफरेंस का हमारा एक पक्का फार्मूला होता है, वो फार्मूले को हम बोलेंगे V इज टू W/Q। V यानी कि वोल्ट को कहते हैं, W आपका वर्क डन है, Q आपका चार्ज है। थोड़ा उसका फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ मैं अगर आप चाहे तो। होप यू कैन सी दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, VOLT वोल्ट इज इक्वल्स टू WORK वर्क डन बाई चार्ज CHARGE। जैसा कि मैंने इसका फार्मूला भी लिख दिया, आप देख सकते, वोल्ट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई चार्ज। तो 1 वोल्ट किसके बराबर रहेगा, 1 जूल्स पर सेकेंड, यानी कि 1 वोल्ट की जो वैल्यू है 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होती। तो ये एक्चुअली आपको पोटेंशियल डिफरेंस का एक फार्मूला कह सकते हैं, आप एक फार्मूले के रूप में देख सकते हैं। तो अब आपको डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उम्मीद करता हूँ समझने आ गया होगा। अगर आपको ये समझने में कुछ मुश्किल हो रही है तो जो आंसर मैं स्क्रीन पे लगाया था बोलते वक्त, वो आंसर को कम से कम 2 टाइम लिखिए और याद करने की कोशिश करिए। अगर कुछ डाउट अगर आपको इस आंसर को लेकर है तो आप ऑनलाइन क्लास जब भी हमारी होती है आप मेरे से पूछ सकते। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टॉपिक्स रिलेटेड टू दी व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस PD, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF एंड डिफरेंस बिटवीन देम। ये हमारा कंप्लीट हो गया। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को एक और सिंबल से भी डिनोट किया जाता है, इस तरीके का सिंबल रहता है वो, देखिए लुक है, थोड़ा सा E के जैसा रहेगा। जैसा कि वोल्ट को हम V से डिनोट करते हैं, इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कुछ इस तरीके का सिंबल रहता, ऐसा हम डिनोट करते हैं। तो ये हमारा हो गया रिलेटेड टू दिस पॉइंट। नाउ कमिंग टू वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड विटल टॉपिक रिलेटेड टू अवर चैप्टर। हमारे चैप्टर को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही विटल टॉपिक है, वो है ओम्स लॉ। तो हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद हम हमारी क्लास को आगे और बढ़ाएंगे। ओम्स लॉ का सबसे पहले मैं आपको ओम्स लॉ समझने के लिए आपको रेसिस्टेंस किसे कहते हैं समझना होगा। रेसिस्टेंस बोल तो देखिए, हर एक के अंदर एक रेसिस्ट मतलब क्या है, उसका रुक जाना या रोकना या फिर उसके अगेंस्ट जाना। द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट इज नथिंग बट रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस यानी कि करंट को ने ऑब्स्ट्रैक्ट करना चाह रहा, थोड़ा सा रोकना चाह रहा। जैसा कि फ्रिक्शन फोर्स ज़मीन के अंदर रहता कि हम आपको गिरने से यानी उसके कुछ फ़ायदे और नुकसानात रहते फ्रिक्शन के, वैसे ही जो कंडक्टर है हमारा, जो भी आप आयरन वायर ले लीजिए, कॉपर वायर या सिल्वर वायर, वो कंडक्टर रहेगा, उसके अंदर जो रेसिस्टेंस रहता वो इस तरीके से रहता। रेसिस्टेंस के बारे में हमको बहुत ज़्यादा पढ़ना है आगे, लेकिन पहले हमको ओम्स लॉ समझना है। ओम्स लॉ समझते हुए थोड़ा उसका एक एक्सपेरिमेंट कर लेके आगे बढ़ेंगे, फिर रेसिस्टेंस के बारे में हम समझ सकते। तो सबसे पहले मैं ओम्स लॉ को रीड कर रहा हूँ, लिसन केयरफुली। ओम्स लॉ, the potential difference between the ends of the conductor is directly proportional to the electric current passing through it if a temperature is constant। यानी कि जो तो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, किसका, एंड ऑफ द कंडक्टर का, ठीक है, जो एंड ऑफ द कंडक्टर का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, जो उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पे हम बोलेंगे V/I इज कांस्टेंट।
वोल्ट बाई इलेक्ट्रिक करंट इज कांस्टेंट इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कंडीशन याद रखना पड़ेगा। इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट को हम वैसे एक्सपेरिमेंट बहुत ही आसान है। पहले आपको एम लिखना है, ठीक है। एम आपने लिखा टू शो दैट द रेशो V बाई आई इज कांस्टेंट फॉर ए कंडक्टर। फिर आपने अपैरेटर्स लिखा। अपैरेटर्स में हम कुछ चीज़ें ले लेंगे लाइक 5 ड्राई सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट ईच, कंडक्टिंग वायर, एन एमीटर, अ वोल्ट मीटर, थिन आयरन स्पोक ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, LED एंड की। इतने सारे चीज़ें हमको ज़रूरत होंगे इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट में आगे डायग्रामेटिकली भी समझा देता हूँ ताकि आपको आसानी होगी। ओके, टू एक्सप्लेन ओम्स लॉ क्लियरली आई हैव ड्रॉन वन डायग्राम ऑन दी बोर्ड एज यू कैन सी। देखिए मैंने एक बोर्ड पे डायग्राम उतारा जैसा आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये करंट का जो डायरेक्शन है आई इस तरीके से रहेगा, करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा। और इसको करंट को मेज़र करने के लिए हमारे पास एक एमीटर है जिसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ। वैसे ही वोल्टेज को डिनोट करने के लिए हमारे पास एक वोल्ट मीटर है जिसको मैं वी से डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये की है यानी कि ऑन ऑफ हो जाएगी ये, ठीक है। और ये आपको जो सिंबल दिख रहा है ये तो हमारे पास बैटरी का सिंबल है। तो ये बैटरी हो गई, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, की हो गया। ये जो आपको दिख रहा है ये आयरन स्पोक कहते हैं इसको। ये जो लंबा एक छोटा सा एक पट्टी के जैसा लेंगे हम, तो इसको हम यूजुअली आयरन स्पोक कहते हैं। या इसको आयरन की लेना बोल के ज़रूरी नहीं है, आप आयरन के साथ कॉपर की भी ले सकते हैं या सिल्वर की भी ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपेरिमेंट। तो ओम्स लॉ के लिए सर्क्यूट कुछ इस तरीके से सेट होगी जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो इसी सर्क्यूट की बेस पे मैं एक थ्योरी पार्ट लिखूं। पहले अपैरेटर लिख लेंगे हम। मैं यहाँ पे थोड़ा सा शुरू से स्टार्ट करता हूँ। सो मैं पहले अपन लिख लिए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ लिखने के बाद एम टू शो V बाई आई इज कांस्टेंट। एम लिख लेके टू शो V बाई आई इज कांस्टेंट। अपैरेटर्स लिखे नेक्स्ट हेडिंग। अपैरेटर में आप क्या लिख लेंगे, बैटरी, एमीटर, की। ये बैटरी हो गई, एमीटर हो गया, की हो गया, आयरन स्पोक, ठीक है, एंड वोल्ट मीटर एंड शेल। यहाँ पे हम शेल का भी इस्तेमाल करेंगे, आप अपैरेटर में लिख देना। प्रोसीजर कैसा लिखेंगे आप, सेम इसके लेके कनेक्ट अ सर्क्यूट एज शोन इन द फिगर और डायग्राम। पहले डायग्राम उतार दीजिए, फिर आप यहाँ पे लिखिए कनेक्ट द सर्क्यूट एज शोन इन द डायग्राम। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, सोल्जर द कनेक्टिंग वायर टू द एंड ऑफ द आयरन स्पोक, क्लोज द की। सोल्जर द कनेक्टिंग वायर टू द एंड ऑफ द आयरन स्पोक, क्लोज द की मतलब क्या है बोलते हो, इसको कुछ इस तरीके से सोल्ड करके इसको की को पूरा क्लोज कर दो बोल के बता रहा है। नेक्स्ट, नोट द रीडिंग ऑफ द करंट फॉर एमीटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम वोल्ट मीटर इन अ टेबल। अब आप एक छोटा सा टेबल बना लीजिए, ठीक है। टेबल बना लेके एक आप एमीटर की मैं टेबल पहले बना के दिखाता हूँ आप। लुक एट द बोर्ड स्टूडेंट। यहाँ पे हम एक टेबल सा बना लेंगे, ठीक है। टेबल में क्या क्या नोट कर लेंगे हम, एक तो सीरियल नंबर, जो भी सीरियल नंबर हमारा 1 2 3 4 5 6 रहेगा वो नोट कर लेंगे। उसके बाद वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमने मेज़र कर लेंगे यूजिंग वोल्ट मीटर से। फिर आई यानी कि करंट मेज़र कर लेंगे यूजिंग एमीटर से। फिर V बाई आई हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से तो पहली रीडिंग आपने नोट कर ली, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। और सपोज यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, लुक एट दी बोर्ड, कि यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिख लिया है 1, वोल्ट उसका समझिए 1.5 वोल्ट है, ठीक है। उसका करंट रह जाएगा समथिंग कुछ रह जाएगा। सेकंड में वोल्ट उसका 3 है, थर्ड में उसका 4.5 है, फोर्थ में हमारे पास 6 वोल्ट है, ठीक है। तो उसका करंट आप जब मेज़र करेंगे तो करंट मेज़र करना है, उसकी V बाई आई एक वैल्यू आती जो यूजुअली कांस्टेंट रहती है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। नाउ उसके बाद ये पूरा मेज़र कर दिए रिपीटेड करके रीडिंग। उसके बाद जब आप कैलकुलेट करेंगे, पूरा कैलकुलेट करने के बाद आपको जो आंसर आएगा वो V बाई आई कांस्टेंट रहता है। तो ये हमारा ओम्स लॉ एक सिंपल आंसर रहता है। तो आप फिर सेम ऑब्जर्वेशन में लिखना कि वी ऑब्जर्व ओम्स लॉ, V बाई आई इज कांस्टेंट, रिजल्ट वी शो दी V बाई आई इज कांस्टेंट। ये ओम्स लॉ को लेके मैं एक आंसर और इसका जो डायग्राम और इसका फिलअप वाला बॉक्स आपके स्क्रीन पे लगाता हूँ। तो आप पहले ये स्क्रीन पे देख लीजिए, उसके बाद ओम्स लॉ के बारे में और बहुत कुछ पढ़ना है हमको आगे। नाउ द टाइम टू सी दी डेफिनेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ ओम्स लॉ ऑन योर स्क्रीन।
Hope you have saw Ohm's law, definition, experiment with like circuit diagram and box. But as you were observed that the box was unfilled, जो box था आपका वो unfilled था, तो अभी मैंने फील्ड करके आपके सामने रखा, जैसा आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 5 मरतबा मैं ये एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने वोल्ट को 1.5 वोल्ट रखा हूँ, सेकेंड टाइम 3 वोल्ट्स, थर्ड टाइम 4.5 और फोर्थ टाइम 6 वोल्ट एंड फिफ्थ टाइम 7.5 वोल्ट हमने लिया है। तो जो हम जैसा ही वोल्ट अप्लाई कर रहे थे उसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है हमने एमीटर की मदद से मेज़र कर लिया था। तो एमीटर की मदद से जब हम मेज़र कर रहे हैं तो 1.5 पे 1 आया, वो 3 पे 2 आया, 4.5 पे 3, 6 पे 4 एंड 7.5 पे आपको 5 एम्पियर आया। नेक्स्ट है V/I। जब आप 1.5 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, सेम 1.5 रहेगा। नेक्स्ट अगर आप 3 को डिवाइड करोगे 2 से, ठीक है, यहाँ मैं करके बता देता हूँ, 3/2 इजिकल्स टू क्या होगा, 2 1 = 0.5, तो 1.5 आपको आंसर आ जाएगा। सेम केस 4.5/3 करोगे तो 1.5 आ जाएगा, 6/4 करोगे तो भी 1.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से V/I के वैल्यूज पूरे 1.5 यानी कि कांस्टेंट आए। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ लेंगे। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन कंक्लूड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द आयरन स्पोक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट passing through it, assuming the temperature of iron spoke is constant during the flow of current through it। अब हम ये एक्टिविटी से कंक्लूजन ले सकते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस बह रहा, फ्लो हो रहा बिटवीन द एंड्स ऑफ द आयरन स्पोक, जो आयरन स्पोक के एंड में, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो करंट पासिंग थ्रू इट हो रहा। लेकिन यहाँ कंडीशन अप्लाई क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना है। Draw a graph between V and I taking the current I along the y-axis and potential difference V along x-axis with appropriate scale. You will get a straight line graph passing through the origin as। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, ग्राफ कैसा बना रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, एक हमारा y-axis है। ठीक है, y-axis पे हम क्या ले लेंगे, एम्पियर करंट ले लेंगे। ठीक है, ये I ले लिए हम। ठीक है, और ये I हो गया CURRENT, करंट ले लिया हमने। फिर एक एक्स एक्सिस है हमारा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम क्या ले लेंगे, वोल्ट ले लेंगे, वोल्ट यानी कि V हो गया। अब हम इसको सेम यहाँ पे जो वैल्यूज हमको आए थे वो मार्क करते जाएंगे। ये मैं थोड़ा रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ। डायरेक्शंस आपको अगेन ब्लू मार्कर से ही मार्क करके बता रहा हूँ। ये एक डायरेक्शन है और एक डायरेक्शन कौन सा है, ये है। ठीक है, 2 डायरेक्शन है। तो देखिए, सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 पे हमारे पास मार्क 0 ही चाहेगा, नथिंग। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस स्केल लिख लेता हूँ, यहाँ पे स्केल में क्या लिखूँगा मैं, यानी कि एक्स एक्सिस पे जो मैं वोल्ट लिया 1 यूनिट इजिकल्स टू 1.5। यहाँ पे स्केल में ब्लैक स्केच से लिखता हूँ, स्केल, होप यू कैन सी दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड, एक्स एक्सिस, ओके, 1 यूनिट इजिकल्स टू 1.5 वोल्ट। वाई एक्सिस का क्या लिख रहा हूँ मैं, 1 यूनिट, ओके, इजिकल्स टू 1 एम्पियर, 1A। तो ये तो आपको एक्चुअली जब ग्राफ में आप देखोगे तो उसमें बॉक्स रहेंगे, फिर वो बॉक्स में अगेन 10 लाइन्स होते हैं। ये नॉर्मली मैं प्लेन बोर्ड पे आपको करके दिखा रहा हूँ। तो हम वो डिफरेंस भी लिख लेंगे रेड मार्कर से। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सपोज 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 4 समथिंग, ऐसा 5 6 चलते रहेगा। यहाँ पे मैं लिख लिया 1.5, उसके बाद यहाँ पे 3 लिख लिया हूँ, यहाँ पे लिखा मैं 4.5, यहाँ पे 6 लिख लिया। तो 1 पे हमारे पास क्या है, 1.5 है, यहाँ पे मार्क कर दिए हम। 2 पे क्या है हमारे पास, ठीक है, 2 पे 3 है तो हमने 3 मार्क कर दिया। वही 4.5 पे हमारे पास अगेन 3 है तो 3 मार्क कर दिए। 6 पे क्या है हमारे पास, इस तरीके से। अब ये मार्किंग फिर से समझाता हूँ मैं आपको। 0 तो ओरिजिन हो गया। जब वोल्ट 1.5 था तो करंट कहाँ पे था, 1 पे था, तो 1.5 पे मैंने 1 पे मार्क कर दिया। होप यू अंडरस्टैंडिंग, उम्मीद करता हूँ समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट है 3 पे, जब वोल्ट 3 था तो हमारा करंट का था 2 पे था, तो मैंने 2 पे मार्क कर दिया। सेम वोल्ट जब हमारा 4.5 पे था, ये जो 4.5 दिख रहा है आपको, तो करंट हमारा 3 पे था। तो ये मार्किंग को थोड़ा सा, या तो इसको 4.5 यहाँ पे दे देंगे तो ये सही हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट है 6 पे जब हमारा वोल्ट था तो हमारा पास 4 पे करंट था, करंट की वैल्यू, तो हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है।
तो ये हो गया आपका ओम्स लॉ का ग्राफ बन गया। तो एग्जाम में अगर ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ बोले तो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट सेम है, इंस्टेड ऑफ आयरन स्पोक, अगर मैं आयरन स्पोक को निकाल के अगर कोई एक एलईडी उसके बदल लगाऊंगा तो मेरे को ग्राफ किस तरीके से आएगा, देखिए वो ग्राफ भी मैं बताता हूँ। ये तो हो गया आयरन स्पोक, ये ग्राफ है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ग्राफ, ओके, एज पर आयरन स्पोक, ओके, विथ कांस्टेंट टेम्परेचर, विथ कांस्टेंट PERATURE, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर। नेक्स्ट है जो सेकंड वाला ग्राफ है वो आई थिंक मैं उतार देता हूँ। अभी आप थोड़ा सा दो काम करना है आपको, एक तो जो बॉक्स है उसके वैल्यूज़ फिल कर लीजिए और एक ग्राफ यहाँ से लेके आपको कॉपी करना है। मैं थोड़ा सा रेड मार्कर से मार्क कर दूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ग्राफ आपको कॉपी करना है। फिर मैं बताऊंगा कि अगर इंस्टेड ऑफ आयरन स्पोक हम एलईडी लिए तो ग्राफ किस तरीके से आता है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। Hope you have copied the graph as well as you have filled the values in the table. So that's all about our today's session for electric current. We will going to continue our this existing chapter electric current with different topics in our next session. Till that, you have to take care and take care of yourself, study well and maintain notes. Notes is compulsory. So you are watching Ahliabad High School and Junior College YouTube channel. I am Sayyid Rashid. Have a great time. Thank you.